Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to another special video. This video is regarding the last year questions and its solutions of a blaster examination restricted to metal. One of our friend asked me in the comment section to make this video, so I made this. So guys, if you are new in my channel, please subscribe my channel, and if you like my videos, please hit the like button and share with your friends. This will be helpful in your upcoming examination. So let's get started. Question number 1. The sound level is measured in dash. Meters, lux, decibel, all of the above, none. Answer will be C, decibel. Question number 2. The relieving hole for dealing the misfire shall not be. अगर मिसफायर होता है उसको एक डील करने के लिए एक रिलीविंग होल हम लोग उसके पास में बनाते हैं, वो कितना उसमें डिस्टेंस रहता है. शैल नॉट बी नियरर देन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिसफायर्ड होल. आंसर विल बी डी. इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और उसका आंसर भी सिंपल ही है. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 3. कंटेनर्स मेड अप ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शैल नॉट बी यूज्ड फॉर कैरिंग एक्सप्लोसिव्स. ये पूछ रहा है कि कंटेनर जिसमें हम लोग एक्सप्लोसिव कैरी करते हैं कौन सा मटेरियल से नहीं बनता है. नॉन कंडक्टिव मटेरियल, गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन, कंडक्टिव मटेरियल, नॉन ऑफ द अबव. तो इसमें क्या है कि एक्सप्लोसिव हम लोग अगर कैरी करते हैं उसमें जो कंटेनर होता है वो जिससे से बनता है ना, मैक्सिमम वो नॉन कंडक्टिव होना चाहिए. तो यहाँ पे ऑप्शन है नॉन कंडक्टिव मटेरियल, ओके, वो गैल्वेनाइज्ड स्टील और गैल्वेनाइज्ड आयरन. गैल्वेनाइज्ड स्टील और आयरन, देखिए स्टील और आयरन दोनों कंडक्टिव है, पर अगर गैल्वेनाइज्ड होता है ना उसका कंडक्टिविटी थोड़ा सा लो हो जाता है, इसीलिए ये तीनों चलता है. लेकिन अगर कंडक्टिव मटेरियल है वो कभी नहीं होगा. तो आंसर विल बी डी, कंडक्टिव मटेरियल से नहीं बनना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4. नो ड्रिल शैल बी यूज्ड फॉर बोरिंग ए शॉर्ट होल अनलेस इट अलाउज ए क्लियरेंस एटलीस्ट डैश ओवर ए डायमीटर ऑफ द कैट्रिज ऑफ एक्सप्लोसिव्स. दो होल हम लोग करते हैं तो होल का डायमीटर कितना होना चाहिए, कैट्रिज का जो कैट्रिज एक्सप्लोसिव जो है उसका डायमीटर से कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए. आंसर विल बी 0.3 सेंटीमीटर, 3 mm. आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 5. Canteen is required to be provided in mines where more than dash persons are ordinarily employed. Answer will be D, 250. Question number 6. Not more than dash detonators are transported in a vehicle at a time in the mine. 200. इस सिंपल क्वेश्चन से इसको अच्छे से याद रहेगा और अच्छे से याद रखिएगा. आंसर विल बी डी. क्वेश्चन नंबर 7. The aggregate maximum charge in holes fired at one time shall not exceed dash in case of an open cast working whereas any permanent structure not belonging to the owner lies within the danger zone at a 80 meter distance. अगर हम लोग का कोई बाहर कोई बिल्डिंग है या कोई स्ट्रक्चर है, परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग का एरिया में ही आता है, लेकिन वहाँ पे अगर हम लोग ब्लास्टिंग करना है तो मैक्सिमम कितना चार्जेस एक होल में रखना चाहिए, वो होता है 2 kg. आंसर विल बी ए. Question number 8. Every magazine where explosives are stored shall be in charge of a dash who shall be responsible for the proper storage of explosives. Answer the owner, manager, blaster, foreman, competent person. Answer be E, competent person. Question number 9. Explosives shall be stored in store, strong steel almirah, approved magazine, air conditioned store. None of these. Answer will be approved magazine. Answer will be C. Question number 10. Carbon dioxide gas in the underground is found where? Near roof, middle of the roof, near floor, in the cavities. Answer will be D, in the cavities. Question number 11. Explosives contains. Explosive में क्या क्या रहता है? Combustible material, oxidation agent, stabilizer, sensitizer, all of them. Answer will be E, सब रहता है. Number 13. The magazine in charge is appointed in the mine in compliance of the which regulation of the MMR 1961. Magazine in charge 1961 में कौन सा रेगुलेशन में वो आता है? आंसर विल बी रेगुलेशन 156. क्वेश्चन आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 14. इन द इवेंट ऑफ ए मिसफायर द एंट्रेंस टू द वर्किंग प्लेस शैल बी व्हाइट वॉश्ड, इल्यूमिनेटेड, फेंस्ड, आइसोलेटेड. अगर मिसफायर होता है तो उसको फेंसिंग करना जरूरी है. यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि MMR 1961 में चैप्टर XB जो 15 नंबर चैप्टर है वो है एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग के ऊपर.
वो वाला चैप्टर को आप अच्छे तरह से लाइन टू लाइन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ब्लास्टर्स का एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आता है ना, सारा क्वेश्चन मैक्सिमम उसी पार्ट से आएगा या उसी पार्ट से रिलेटेड पार्ट में आएगा। तो उस चीज़ को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नो पर्सन हुज वेजेस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मिनरल रॉक डेब्रिस obtained by firing the shots can be appointed to perform the duties of मेट, ब्लास्टर, फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर। आंसर विल बी ब्लास्टर, क्योंकि ब्लास्टर बहुत सेंसिटिव जॉब है और बहुत सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ शॉट्स आर फायर्ड अदर देन इलेक्ट्रिकली, इग्नाइटर कॉर्ड एंड मिसफायर इज सस्पेक्टेड, नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू द री एंटर द प्लेस अंटिल द डैश मिनट्स आफ्टर द फायरिंग ऑफ शॉट्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकली ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं, अगर मिसफायर का सस्पेक्ट होता है, तो कितना मिनट के बाद अंदर हम लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो आंसर विल बी 30 मिनट्स, ए। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लास्टिंग कैन नॉट बी कैरिड आउट एट ए प्लेस इफ इट इज विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम एनी परमानेंट बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर। फिर से क्वेश्चन आया, आंसर विल बी 500 मीटर। जो हम लोग का डेंजर जोन होता है, उसके अंदर में अगर परमानेंट कोई बिल्डिंग रहता है जो ओनर को बिलोंग नहीं करता है, तो वहाँ पे आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन मोर देन वन ब्लास्टर इज एम्प्लॉयड इन द सेम शिफ्ट फॉर ब्लास्टिंग एट डिफरेंट प्लेसेस विद इन 300 मीटर ऑफ ईच अदर, द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू ब्लास्टर्स फायरिंग द शॉट शैल बी। अगर एक शिफ्ट में 2 ब्लास्टर को हम लोग रखे हैं, अगर ब्लास्ट 2 जगह हो रहा है, वो भी 300 मीटर के अंदर, तो एक अगर ब्लास्ट होता है तो उसके बाद कितना समय के बाद दूसरा ब्लास्ट होगा। तो आंसर विल बी 30 मिनट्स, डी। क्वेश्चन नंबर 19, जनरली द सब ग्रेड ड्रिलिंग लेंथ इज डैश टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ द बर्डन। बर्डन से सब ग्रेड ड्रिलिंग कितना होता है? देखिए, हम लोग का एक थंब रूल टाइप का एक है फार्मूला कि सब ग्रेड ड्रिलिंग होता है जो बर्डन डिवाइडेड बाय 3, तो 0.3 टाइम्स। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 20, द मिनिमम लेंथ ऑफ द फ्यूज ऑफ फायरिंग ए शॉर्ट होल इज 1.2 मीटर। ये भी उसमें जो 1961 में एक्स भी चैप्टर है उसमें वो लिखा हुआ है। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 21, डैश लाइक डेटोनेटर्स इट ऑल्सो इनिशिएट्स हाई एक्सप्लोसिव बट फॉर इनिशिएटिंग इफ इट ए डेटोनेटर इज नीडेड। डैश एक चीज़ जो पूछ रहा है, ये एक डेटोनेटर टाइप का ही है जो हाई एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करता है, बट उसको इनिशिएट करने के लिए एक डेटोनेटर चाहिए। बूस्टर, डिले डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इंस्टेंटेनियस। देखिए, जितना भी ऑप्शन है उसमें सब चीज़ डेटोनेटर है, खाली एक को छोड़ के, वो है बूस्टर। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 22, ए प्रिकर इज यूज फॉर व्हाट। प्रिकर जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो 1961 का जो चैप्टर नंबर एक्स भी है उसमें ये चीज़ भी पूरा लिखा हुआ है। ए प्रिकर इज यूज फॉर व्हाट। ए प्रिकर इज यूज फॉर, ऑप्शंस आर चार्जिंग एंड स्टेमिंग शॉर्ट होल्स, cleaning of short holes, priming of holes, priming of charges, none of the above. Answer will be priming of holes, not priming of charges. Answer will be C. Question number 23, the performance of the blasting is calculated based on। ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस को किससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट ऑफ ब्लास्टेड मेटल, कितना ब्लास्ट हुआ, थ्रो ऑफ द मेटल, कितना दूर वो थ्रो हुआ, आफ्टर फ्यूम क्वालिटी, और पाउडर फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर। आंसर विल बी पाउडर फैक्टर। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 24, मिसफायर मीन्स द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ डैश ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल। मिसफायर हम लोग किसको बोलेंगे? देखिए, यहाँ वहाँ भी वही चैप्टर में मिसफायर और सॉकेट का बारे में लिखा हुआ है। मिसफायर किसको बोलेंगे और सॉकेट किसको बोलेंगे? मिसफायर होता है अगर एक होल में हम लोग चार्ज किए हैं, उसको ब्लास्ट किए, वो पूरा ही चार्ज ब्लास्ट नहीं हुआ, उसको बोलेंगे मिसफायर। सॉकेट क्या है? सॉकेट क्या है कि अगर वो ब्लास्ट जो होल है, अगर उसका जितना भी हम लोग चार्ज किए वो ब्लास्ट हुआ, लेकिन कुछ पार्ट उसका नहीं हुआ, ब्लास्ट नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे सॉकेट। तो आंसर विल बी एंटायर चार्ज, सी। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर यूज ऑफ एसएमएस एसएमई एक्सप्लोसिव्स इन ए ब्लास्ट होल, परमिशन अंडर व्हिच रेगुलेशन ऑफ द एमएम 197 इज टू बी ऑब्टेन्ड? आंसर विल बी रेगुलेशन नंबर 153। आंसर विल बी बी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 153, नो एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड इन ए माइन एक्सेप्ट दैट प्रोवाइडेड बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। The explosives provided for use shall be of good quality as far as can be known in good condition. तो आंसर will be 153. क्वेश्चन नंबर 26, मिसफायर मीन्स, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ,
Misfire means the failure to explode of an entire charge of explosive in a short hole. Yes, first option is the right answer. Answer will be A. Question number 27. Reserve stations in open cast may be located. Reserve stations open cast जो माइंस है वहाँ पे कहाँ पे लोकेट करते हैं? Near entry to the mine, 50 meter away from the rest shelter, at any overburden bench, at a non-working overburden bench, none of the above. Answer will be none of these. क्योंकि रेगुलेशन में ऐसा कोई भी जगह पे नहीं लिखा है कि पर्टिकुलर कहाँ पे होना चाहिए. वो लिखा है ऐसे जगह पे मैनेजर डिसाइड करता है जहाँ पे आदमी लोग का आना जाना ना हो, उसका 18 मीटर के रेडियस में सारा चीज़ साफ़ सफाई होके रहा हो, तो वो चीज़ है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा मैनेजर को. लेकिन ये पर्टिकुलर जो पूछ रहा है ना कि नॉन वर्किंग ओवरबर्डन बेंच 50 मीटर अवे फ्रॉम रेस्ट शेल्टर, ऐसा कुछ नहीं है. तो आंसर विल बी नॉन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 28. No working shall be done within dash of any railway public road. Repeat हुआ क्वेश्चन. 45 मीटर. C. क्वेश्चन नंबर 29. Major factors affecting particle velocity of ground vibration. जो ग्राउंड वाइब्रेशन होता है उसका जो पार्टिकल वेलोसिटी होता है वो किस किस के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स, यस. डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यस. अमाउंट एंड टाइटनेस ऑफ द स्टेमिंग, यस. ओनली 1 and 2, ऑल ऑफ द अबव. आंसर विल बी ई, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 30. ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ब्लास्टर्स इंक्लूड. ब्लास्टर्स का जो ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या क्या है? ही शैल नॉट हैंड ओवर एनी एक्सप्लोसिव टू एनी अनऑथराइज्ड पर्सन्स, यस. He will be present when shots are being charged and stemmed and shall himself fire the shot, yes. When a shot fired by him is misfired, he will ensure that the misfire place is adequately fenced, yes. Answer will be all 1, 2 and 3. Answer will be E. Question number 31. High explosives include ammonium nitrate, nitroglycerin, slurry explosives, all. Answer will be E. Question number 32. The maximum number of shots fired by a blaster in a shift shall be fixed by the manager based on the time normally required to prepare and fire shots, yes. The time required for a blaster to move between places where shots are fired, yes. Capacity of the exploder, both A and B, none of the above. Answer will be D, both A and B. According to MEMA 1961 Regulation 160, blasters. Answer will be D. Question number 33. The main purpose of ventilation in underground mines is to provide sufficient oxygen for the persons, yes. To clear or dilute smoke, dust, inflammable or noxious gases, yes. To prevent excessive rise of temperature, yes. Answer will be E, A, B and C. Question number 34. To measure the performance of blasting, which factor is generally calculated? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ. आंसर विल बी A, पाउडर फैक्टर. Question number 35, the last question of this video. What characteristics are most important for the selection of explosives? कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है एक्सप्लोसिव सिलेक्शन करने के लिए? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक चार्ज डायमीटर, वाटर रेजिस्टेंस, फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर सेंसिटिविटी एटसेट्रा. डेटोनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, VOD, डेंसिटी, एनर्जी, इकोनॉमिक एंड लॉजिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ द अबव. आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव. ये क्वेश्चन हम लोग को ये भी बताता है कि एक्सप्लोसिव सिलेक्शन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के लिए वो सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया है. तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है हम लोग के लिए. तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए टोटल 35 क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस ब्लास्टर्स का, रेस्ट्रिक्टेड मेटल, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन और सॉल्यूशंस है. आने वाला 2 वीडियो में और 35 और 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ hit the like button and please share with your friends, and if you are new in my channel, please subscribe my channel. See you in the next video.